بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اہم سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پھر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان سوالوں کو لیں جو نماز سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ عبادت ہے، اور نماز کو سیکھ کر کے پڑھنا یہ ایک مسلمان کی بنیادی اور بیسک ضرورت ہے۔ بلکہ ہم نے آج یہ کوشش کی ہے کہ ہم نماز کے ان مسائل کو لیں جو سجدہ سہو سے متعلق ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہم سے نماز میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سجدہ سہو نہیں کر پاتے۔ تو ہم یاد رکھیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے نماز ادا کر لی، لیکن ضابطے کے مطابق ہماری نماز نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم اخیر تک ان مسائل کو سنیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سہو کرنے کا یہ طریقہ لکھا ہے کہ ہم قاعدہ اخیرہ میں، یعنی جب ہم آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت التحیات مکمل کرتے ہی، یعنی درود شریف اور دعائیں شروع کرنے سے پہلے التحیات مکمل کرنے کے فوراً بعد ہم ایک طرف کو یعنی دائیں طرف کو سلام پھیریں، پھر فوراً ہم 2 سجدے کریں، اور 2 سجدے کرنے کے فوراً بعد یاد رکھیں دوبارہ سے ہم التحیات پڑھیں، اور التحیات مکمل کرنے کے بعد معمول کے مطابق ہم درود شریف اور دعائیں پڑھیں اور دونوں طرف کو سلام پھیر دیں۔ اس سے ہمارا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا وہ طریقہ ہے جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے۔ آئیے اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز کی یا سنت نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، ہم اس سلسلے میں یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ نفل نماز کی، اسی طرح سنت نماز کی تمام رکعتوں میں چونکہ الحمد شریف کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور ضابطہ اور رول یہ ہے کہ واجب کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نفل نماز کی یا سنت نماز کی کسی بھی رکعت میں بھولے سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لے، انشاءاللہ اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، یہ سوال فرض نماز سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے والا نفل یا سنت نماز سے متعلق تھا۔ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں دھوکے سے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لے، انشاءاللہ اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا آخر کی دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں الحمد شریف سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ جان بوجھ کر نہ پڑھے یا دھوکے سے پڑھنا بھول جائے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، البحر الرائق میں جلد 2 صفحہ 94 پر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وَإِن تَرَكَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا يَجِبُ إِن كَانَ فِي الْفَرْضِ، کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی
आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा को पढ़ना छोड़ देता है, वो जानबूझ करके छोड़े या धोखे से छूट जाए, तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक उस पर सजदा सहव करना वाजिब नहीं है, बग़ैर सजदा सहव के उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। चौथा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स शुरू में सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और उसने डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कहने के बाद सूरह फातिहा पढ़े बगैर कोई सूरत पढ़ना शुरू कर दिया, फिर उसे याद आया, तो अब वो क्या करे, किस तरीक़े से उसकी नमाज मुकम्मल होगी। देखिएगा, फतवे की मशहूर किताब फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 126 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स शुरू में सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाता है और वो डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कहते ही सूरत को शुरू कर देता है, बाद में उसे याद आता है कि मैंने अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, मैं भूल गया, तो अब उसको चाहिए कि वो पहले याद आते ही सूरह फातिहा को पढ़े, फिर उसके बाद में ज़ाब्ते के मुताबिक कोई सूरत मिलाए यानी क़िरात करे, और आखिर में वो सजदे सहव कर ले। इंशाअल्लाह इससे उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 5वां सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में अगर कोई शख्स सूरह फातिहा को 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा पढ़ लेता है, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है, नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत सी मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम अलहम्दु शरीफ एक मरतबा पूरी पढ़ लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, फिर हम दोबारा पढ़ लेते हैं, तो इस सूरत में हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, या सजदे सहव से होगी। देखिएगा, इस सिलसिले में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में जिल्द 2 सफ़ा 152 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में से किसी एक रकात में या दोनों रकातों में सूरह फातिहा को या सूरह फातिहा के अक्सर हिस्से को 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा पढ़ लेता है, तो उस पर ताख़ीर की वजह से सजदे सहव वाजिब हो जाएगा, इसलिए आखिर में वो सजदे सहव कर ले, इंशाअल्लाह इससे उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 6ठा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकातों में, इससे पहला सवाल था फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों से मुताल्लिक़, और ये है फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकातों से मुताल्लिक़, कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा को 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा पढ़ लेता है, तो उस पर भी सजदे सहव वाजिब होगा या नहीं होगा। देखिएगा, फतवे की मशहूर किताब बदाइउस सनाए में अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा को या उसके अक्सर हिस्से को 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा पढ़ लेता है, तो उस पर सजदे सहव वाजिब नहीं होगा, बग़ैर सजदे सहव के उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और वजह उसकी ये है कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। 7वां सवाल ये है कि एक साहब ने पहले सूरह फातिहा को पढ़ लिया, फिर उन्होंने कोई सूरत मिलाई, उसके बाद उसी रकात में वो साहब सूरह फातिहा को दोबारा पढ़ लेते हैं, तो आप ये बतलाइए कि उनकी नमाज होगी या नहीं होगी, या उन पर सजदे सहव वाजिब होगा। देखिएगा, इस सिलसिले में फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 126 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स पहले सूरह फातिहा पढ़े, फिर कोई सूरत मिलाए, उसके बाद धोखे से वो दोबारा अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा को पढ़ लेता है तो उसी रकात में, तो उस शख्स पर ताख़ीर की वजह से भी सजदे सहव वाजिब नहीं है, बग़ैर सजदे सहव के उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 8वां सवाल ये है कि एक साहब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाए बग़ैर, यानी सूरह फातिहा पढ़ी और डायरेक्ट रुकू में चले गए, रुकू में उनको याद आया कि मैंने अलहम्दु शरीफ पढ़ के ही रुकू कर लिया, सूरत नहीं मिलाई, तो अब वो नमाज कैसे पढ़ें, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी, या आखिर में सजदे सहव करना होगा। देखिएगा, इस सिलसिले में भी फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 126 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के फ़ौरन बाद
सूरत पढ़े बगैर, सूरत को मिलाए बगैर रुकू में चला जाता है और रुकू में उसको याद आता है कि मैंने सूरत नहीं पढ़ी, तो उसको चाहिए कि वो रुकू से खड़ा हो और खड़े होने के बाद वो सूरत मिलाए यानी क़िरात करे, उसके बाद दोबारा से रुकू करे और रुकू से दोबारा खड़ा हो कौमे की हालत में और फिर हस्ब मामूल वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। लेकिन याद रखें आखिर में उसके ऊपर सजदे सहव करना वाजिब है। वो अगर आखिर में सजदे सहव कर लेगा तो इंशाअल्लाह इससे उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नवा सवाल ये है कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हम कायदे में बैठने के बाद, जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो बैठने के बाद ऐसा होता है कि हम अत्तहियात पढ़ने की जगह अल्हम्दु शरीफ या कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहन इधर उधर चले जाने की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, या हमें सजदे सहव करना पड़ेगा? देखिएगा इस सिलसिले में भी फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 127 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स कायदे में बैठने के बाद तशहुद पढ़ना भूल जाए और तशहुद पढ़ने की जगह वो अल्हम्दु शरीफ या कुछ और पढ़ना शुरू कर दे तो उस शख्स के ऊपर ताख़ीर की वजह से सजदे सहव करना वाजिब हो जाएगा। सजदे सहव कर लेने से उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और वजह उसकी ये है कि तशहुद में कायदे में बैठते ही फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अत्तहियात का पढ़ना फ़ौरन वाजिब और ज़रूरी है। उसने ऐसा नहीं किया, पहले कुछ और पढ़ दिया था, इसलिए ताख़ीर की वजह से उसके ऊपर सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। 10वां आखिरी और बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल ये है कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हम कायदे ऊला में अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े होना भूल जाते हैं और हम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। दुरूद शरीफ कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद या मुकम्मल करने के बाद हमें याद आता है कि हमारा पहला कायदा है और हमें खड़ा होना था। तो अब हम क्या करें? हमारे ऊपर सजदे सहव वाजिब होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा? इस सिलसिले में तफसील से बतलाएं। देखिएगा इस सिलसिले में फतावा शामी में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 2 सफ़ा 545 पर यह फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज के कायदे ऊला में तशहुद पढ़ने के बाद धोखे से, भूले से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है और वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, याद रखें व अला आली मुहम्मद तक पढ़ देता है या इसके आगे पढ़ करके चला जाता है, फिर उसे याद आता है कि मुझे खड़ा होना था, अब वो खड़ा होता है, तो उसके ऊपर सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये भी याद रखें कि बाद किताबों में इस मसले को ऐसे लिखा गया है कि अगर वो सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना कह देता है तो उसके ऊपर इतना कहने से ही सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन हम फतवे के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक जब दोनों मसलों में तकाबुल करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि इन दोनों मसलों में पहला वाला जो फतवा है वो फतवे के उसूल के मुताबिक ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा मोतबर है। यानी अगर हम अत्तहियात पढ़ने के बाद धोखे से कायदे ऊला में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, आली मुहम्मद कह देते हैं या इसके आगे चले जाते हैं फिर खड़े होते हैं तो सजदे सहव वाजिब होगा। लेकिन अगर आली मुहम्मद से पहले पहले हम पढ़ते हैं, चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली इतना बोल दिया हो और फिर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर सजदे सहव वाजिब नहीं होगा। इन दोनों मसलों में पहले वाले मसले को जो तरजीह दी गई है, पहले वाले फतवे को जो ज़्यादा असह और ज़्यादा राजे और फतवे के मुताबिक ज़्यादा अच्छा बतलाया गया है, ये बतलाने वाले अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह। फतवे की मशहूर किताब फतावा शामी में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता इसकी वजाहत की है तफसील के साथ, आप वहाँ देख सकते हैं। बहरहाल ये नमाज के सजदे सहव से मुताल्लिक़
10 اہم اور وہ ضروری مسائل تھے جو ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، جن کا یاد ہونا ہمارے لیے بہت ہی بنیادی اور بیسک ہماری ضرورت ہے۔ ہم اس لیے ان مسائل کو خود بھی سمجھیں اور ان کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور دوسروں کو بھی ہم یہ مسائل بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔